A very good morning, students. Let's start today the new lessons. Beginning of shelters. So from that lesson also you can understand. Beginning of shelter. Shelter means house where we can live. Living. Yes or no? Why do we need the house? हमें house क्यों चाहिए? रहने के लिए चाहिए. और house हमें किससे बचाता है? The different types of the climates, weathers are also from the wild animals and also from the thieves. चोरों से, बरसातों से, पानी से, गर्मी से, ठंडी से, सब हमें ये हाउस हमें बचाता है. इसीलिए हमें हाउस चाहिए. हमारा ये हाउस हमारा रक्षण भी करता है, इसीलिए हमें हाउस चाहिए, है क्या नहीं? सो ऐसी एक लड़की थी आर्या, जो अपनी फ्रेंड्स के मतलब उसके कजिन के पास चली गई. उसका नाम था आरुषि. उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे. और जो भी कच्चा हाउस है, पक्का हाउस है, लाइक कच्चा मीन्स टेम्पररी हाउस, परमानेंट हाउस और बिल्डिंग्स, ये सब उनके बारे में आज हम सीखेंगे. आप सबने तो देखा होगा. हैव यू सीन दिस आवर हाउसेस? Everyone's houses are the different. Someone's houses are the very big, very tall. Some houses are the very small. Yes or no? And excuse me. So already I have seen some of the houses are the very big, very tall, very small. Some houses are made by the kacha houses. Yes or no? It's looking like a hut. Yes, it's made from the bamboo and the grass and thatched. Yes, so now we will learn. Which city or town do you live in? So you have to write the first question. Which city or town you live in? If you are living in Manvat, you have to write the Manvat. If you are living in the Kolla, write Kolla. So write your own address here, okay? And write your house address in the box below. So in this box you have to write your own address, your house address, okay? Not your school address, your house address you have to write. Next, Arya is visiting her cousin Arushi who lives in Mumbai. So one of the Arya has visiting her cousin Arushi. So Arushi was living in the Mumbai. Arya had never seen such tall buildings. So Arya has gone the first time to the Mumbai and she has seen the very tall buildings in Mumbai. And see, of course in Mumbai there are the very big buildings. अगर आप मुंबई में गए होगे तो आप देखो बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग्स है, बहुत सारे ऊंचे मकान हैं. दिस प्लेस इज सो डिफरेंट, द सिटी ऑफ देहरादून. एक प्लेस सबसे बेहतर मतलब डिफरेंट है देहरादून से. आर्या जो है देहरादून से. आर्या पहले रहती देहरादून. देहरादून तो एक कोल्ड प्लेस है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सारी वैलीज है, बहुत सारे गार्डन्स है, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स वहाँ आते हैं. और वहाँ के जो बंगलो है वो बहुत बड़े नहीं होते, स्मॉल होते हैं, ठीक है नहीं? और बिल्डिंग जो होती है स्मॉल होती है. द सिटी ऑफ देहरादून वेयर आई लिव हैज ब्यूटीफुल बंगलोज एंड स्मॉल बिल्डिंग्स. शी सेड as she entered the apartment where Arushi lived, and then she has entered where that the Arushi were living. Need for house. So why do we need the house? All of us live in houses. They may look different, but we feel safe and comfortable in a house. We all are living in the house, so its look different. Means its look is very different, and we are the very safe and comfortable because everyone are living in the houses. Yes, everyone are enjoying in their houses, and it is the very safe and feel comfortable. हम सभी घर में रहते हैं. सबके घर अलग होते हैं. किसी का बंगला होता है, किसी के छोटे घर होते हैं, लेकिन सभी घर में कैसे रहते हैं? सेफ रहते हैं. A house protects us from thieves and wild animals. It protects us from heat, rain and cold and wind. So heat. So house is giving us protection from the wild animals also as well as thieves. Thieves means chor. Yes or no? Or also it protects us from the heat, cold, rain and wind. हाउस जो होता है हमें चोरों से, वाइल्ड एनिमल्स जो जानवर होते हैं उनसे बचाता है. और वैसे हमें जो है सन है, लाइट है, कोल्ड वेदर है, विंड है, रेनी सीजन है, उससे भी हमें वो बचाता है.
Early man, now see, early man lived in caves or under trees. Slowly man learned to build homes with straws, leaves, branches and animal skins. So early man, our forefathers were living in the caves. Yes or no? Before they were not living in the one place. They were going from one place to the another. Then they had thought that we have to live in the one place. So they had settled in a caves. हमारे जो अर्ली मैन है वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा जाते थे और फिर उन्होंने क्या किया कि एक जगह पर रह गए और कहाँ रहते थे? केव में रहते थे। केव बोले तो गुहा। केव जो होते हैं जो गुहा होते हैं जो दगड़ पत्थरों में होते हैं उसके अंदर वो रहने लगे। और फिर क्या हुआ देखो, फिर देन दे हैड लर्न टू स्टार्ट टू मेक देयर हाउसेस। फिर उन्होंने कहा कि चलो अपना खुद का घर बनाते हैं। देन दे हैड स्टार्टेड टू बिल्ड देयर हाउसेस बाय स्ट्रॉ, लीव्स, ब्रांचेस एंड एनिमल स्किन। देन दे हैड यूज्ड animal skins, some of the branches, some of the leaves, and they had started to make their own houses. As man settled down in one place, he began to build house with other materials like stone, mud, bricks and thatch. Thatch बोले तो जो ग्रास होते हैं, ड्राई ग्रास, उससे उन्होंने अपना घर बनाना शुरू किया। फिर उन्होंने कैसे घर बनाए? स्टोन ले लिया, मड ले लिया और ब्रिक्स ले लिए और फिर उन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा घर बनाया। हमारे अर्ली मैन, हमारे पूर्वज ऐसे ही रहते थे। आज हम रहते हैं बंगलों में, लेकिन हमारे पूर्वज रहते थे ऐसे घर बनाकर वो रहते थे। टाइप्स ऑफ हाउसेस, नाउ सी द टाइप्स ऑफ हाउसेस। टेम्पररी हाउसेस, और टेम्पररी और कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, बम्बू एंड पाम लीव्स। सो कच्चा हाउस इज मेड ऑफ व्हाट? मड, स्ट्रॉ एंड बम्बू एंड पाम लीव्स। जो पाम के लीव्स होते हैं उन्हें लेकर मड बोले चिकल है ना, कीचड़ बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड बाम्बू, उससे लेकर वो कच्चा हाउस बना देते हैं अपने लोग। दे आर ऑफन फाउंड इन विलेज। सो लाइक दिस हाउसेस आल्सो वी कैन गेट इन द विलेजेस, बट स्टिल लाइक दिस हाउसेस विल नॉट गेट द विलेजेस। अब इस प्रकार के हाउसेस में कोई नहीं रहता। अगर आप विलेज में गए तो कोई नहीं रहता, सबके घर अच्छे हुए होते, बंधे हुए होते। कई जगह पर ऐसे हाउसेस आपको मिलेंगे, लेकिन उसका जो प्रमाण है बहुत ही कम होगा। एक ही क्या बोलते हैं उसको, विलेज में आपको एक या दो घर ऐसे मिलेंगे जो ऐसे कच्चे हाउस से बनाते हैं। दिस आर नॉट वेरी स्ट्रांग एंड गेट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द बैड वेदर। सो दिस हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रांग। व्हेन द वेदर विल कम, हेवी रेन विल कम, हेवी विंड विल कम, दिस हाउस विल कोलैप्स। ऐसा नो, अगर बहुत जोर से बरसात आ गई, अगर बारिश आ गई, अगर विंड आ गई, विंड को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? हवा। ऐसा नो, बहुत जोर से अगर हवा आ गई तो क्या होता है? ये जगह गिर जाती है, ठीक है नहीं? सो अ हट इज ए कच्चा हाउस। सो दिस हट इज कॉल्ड अ कच्चा हाउस, ठीक है? पक्का हाउस, परमानेंट हाउस, इट्स कॉल्ड द पक्का हाउस। Permanent or pakka house are made of sand, cement, bricks, steel, wood and stone. They are very strong. So where you are living in that houses, this is called the pakka house. Now where I am teaching in the schools. So this school is called the pakka house. Yes or no? क्योंकि ये किससे बना है? ये सैंड से बना है, इसे हमने स्टील लिया है, वुड लिया है और स्टोन, ब्रिक्स, सीमेंट, इससे हमने ये बनाया है। तो ये पक्का हाउस हो गया। Look at the pictures below and help Arya write the names of the materials used in buildings a permanent house. Okay? So आपको अभी लिखे हुए जो आपको आर्या को आपको मदद करनी है, जो ये पिक्चर से आपको देखने हैं और उनके नीचे नाम लिखने हैं। ये पहला पिक्चर कौन सा है? ब्रिक्स का है, सबको मालूम है ये ब्रिक्स है, सब लिखेंगे ब्रिक्स, है क्या नहीं? ब्रिक्स तो है। दूसरा उसके ऊपर ही लिखा है सीमेंट, तो सीमेंट आप वाले को। तीसरा है वुड, तीसरा पिक्चर कौन सा है? ये है वुड का, ठीक है? ये वुड का पिक्चर है, आप यहाँ वुड लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, ठीक है? चौथा पिक्चर है स्टोन, चौथा पिक्चर है स्टोन, पांचवा पिक्चर है स्टील, योर ट्राइड स्टील, और छठा पिक्चर क्या है? इज नॉट लुकिंग प्रॉपरली है,
Okay, this is छठा पिक्चर. You have to say I will take the tomorrow answer. Okay. So आपको यहाँ उसके उनके आपको नाम लिखने हैं. ठीक है, आप लिख सकते हो, आप लिखो, ट्राई करो. नहीं आया तो हम भी है, हम कल लिखेंगे और कल हम पढ़ेंगे अगले. अब तक यही बस करेंगे और कल हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक बाय बाय.